ہیلو بھائی، یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ کوئی ایسا جزیرہ نظر آ رہا ہے مجھے جہاں پہ بہت تیز بارش ہو رہی ہے۔ اس کو دیکھ کر مجھے تو وہ کہانی یاد آ رہی ہے جو میں نے ایک مووی میں دیکھا تھا کہ ایک بندہ جو ٹریول کر رہا ہوتا ہے تو جہاز ان کا سمندر میں ڈوب جاتا ہے، تو یہ ایک بندہ بچتا ہے جو ایک جزیرے پہ جا کے ویسے ہی پہنچ جاتا ہے اپنے مقدر کے ساتھ۔ تو وہاں پہ وہ صرف ناریل کے پانی پہ گزارا کرتا ہے، درختوں سے ناریل اتار کے وہ کھاتا رہتا ہے، اس کا پانی پہ گزارا کرتا ہے۔ اور ایک پتھر جو ہے اس کو ایک شکل دے دیتا ہے ایک آدمی کی، تو اس سے باتیں کرتا رہتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے۔ وہاں سے نکلنے کی کافی کوشش کرتا ہے لیکن نکل نہیں پاتا، کیونکہ جو بھی کشتی وہ بناتا ہے تو لہریں جو ہوتی ہیں پانی کی وہ بہت زیادہ طاقتور ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس کی کشتی بنائی ہوئی ٹوٹ جاتی ہے، اور جب بھی وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے اس کی کشتی ٹوٹ جاتی ہے، لیکن ایک دفعہ وہ کامیاب ہو ہی جاتا ہے اور لہروں کو چیرتا ہوا وہ اپنی زندگی کی طرف واپس لوٹ جاتا ہے۔ اس کے گھر والے دیکھ کر اس کو بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ یہ واقعہ کیسے پیش آیا، جس کو وہ بیان کرتا ہے۔ ہیلو بھائی، یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ کوئی ایسا جزیرہ نظر آ رہا ہے مجھے جہاں پہ بہت تیز بارش ہو رہی ہے۔ اس کو دیکھ کر مجھے تو وہ کہانی یاد آ رہی ہے جو میں نے ایک مووی میں دیکھا تھا کہ ایک بندہ جو ٹریول کر رہا ہوتا ہے تو جہاز ان کا سمندر میں ڈوب جاتا ہے، تو یہ ایک بندہ بچتا ہے جو ایک جزیرے پہ جا کے ویسے ہی پہنچ جاتا ہے اپنے مقدر کے ساتھ۔ تو وہاں پہ وہ صرف ناریل کے پانی پہ گزارا کرتا ہے، درختوں سے ناریل اتار کے وہ کھاتا رہتا ہے، اس کا پانی پہ گزارا کرتا ہے۔ اور ایک پتھر جو ہے اس کو ایک شکل دے دیتا ہے ایک آدمی کی، تو اس سے باتیں کرتا رہتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے۔ وہاں سے نکلنے کی کافی کوشش کرتا ہے لیکن نکل نہیں پاتا، کیونکہ جو بھی کشتی وہ بناتا ہے تو لہریں جو ہوتی ہیں پانی کی وہ بہت زیادہ طاقتور ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس کی کشتی بنائی ہوئی ٹوٹ جاتی ہے، اور جب بھی وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے اس کی کشتی ٹوٹ جاتی ہے، لیکن ایک دفعہ وہ کامیاب ہو ہی جاتا ہے اور لہروں کو چیرتا ہوا وہ اپنی زندگی کی طرف واپس لوٹ جاتا ہے۔ اس کے گھر والے دیکھ کر اس کو بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ یہ واقعہ کیسے پیش آیا، جس کو وہ بیان کرتا ہے۔ ہیلو بھائی، یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ کوئی ایسا جزیرہ نظر آ رہا ہے مجھے جہاں پہ بہت تیز بارش ہو رہی ہے۔ اس کو دیکھ کر مجھے تو وہ کہانی یاد آ رہی ہے جو میں نے ایک مووی میں دیکھا تھا کہ ایک بندہ جو ٹریول کر رہا ہوتا ہے تو جہاز ان کا سمندر میں ڈوب جاتا ہے، تو یہ ایک بندہ بچتا ہے جو ایک جزیرے پہ جا کے ویسے ہی پہنچ جاتا ہے اپنے مقدر کے ساتھ۔ تو وہاں پہ وہ صرف ناریل کے پانی پہ گزارا کرتا ہے، درختوں سے ناریل اتار کے وہ کھاتا رہتا ہے، اس کا پانی پہ گزارا کرتا ہے۔ اور ایک پتھر جو ہے اس کو ایک شکل دے دیتا ہے ایک آدمی کی، تو اس سے باتیں کرتا رہتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے۔ وہاں سے نکلنے کی کافی کوشش کرتا ہے لیکن نکل نہیں پاتا، کیونکہ جو بھی کشتی وہ بناتا ہے تو لہریں جو ہوتی ہیں پانی کی وہ بہت زیادہ طاقتور ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس کی کشتی بنائی ہوئی ٹوٹ جاتی ہے، اور جب بھی وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے اس کی کشتی ٹوٹ جاتی ہے، لیکن ایک دفعہ وہ کامیاب ہو ہی جاتا ہے اور لہروں کو چیرتا ہوا وہ اپنی زندگی کی طرف واپس لوٹ جاتا ہے۔ اس کے گھر والے دیکھ کر اس کو بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ یہ واقعہ کیسے پیش آیا، جس کو وہ بیان کرتا ہے۔
हेलो भाई, ये कौन सी जगह है? ये कोई ऐसा जजीरा नज़र आ रहा है मुझे जहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है। इसको देखकर मुझे तो वो कहानी याद आ रही है जो मैंने एक मूवी में देखा था कि एक बंदा जो ट्रैवल कर रहा होता है तो जहाज़ उनका समंदर में डूब जाता है। तो ये एक बंदा बचता है जो एक जजीरे पे जाके वैसे ही पहुंच जाता है अपने मुकद्दर के साथ। तो वहाँ पे वो सिर्फ नारियल के पानी पे गुजारा करता है, दरख्तों से नारियल उतार के वो खाता रहता है, उसका पानी पे गुजारा करता है। और एक पत्थर जो है उसको एक शक्ल दे देता है एक आदमी की, तो उससे बातें करता रहता है कि ये मेरा दोस्त है। वहाँ से निकलने की काफ़ी कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं पाता, क्योंकि जो भी कश्ती वो बनाता है तो लहरें जो होती हैं पानी की वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होती हैं, जिसकी वजह से वो उसकी कश्ती बनाई हुई टूट जाती है। और जब भी वो बाहर निकलने की कोशिश करता है उसकी कश्ती टूट जाती है, लेकिन एक दफ़ा वो कामयाब हो ही जाता है और लहरों को चीरता हुआ वो अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस लौट जाता है। उसके घर वाले देखकर उसको बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे साथ ये वाक़या कैसे पेश आया, जिसको वो बयान करता है। हेलो भाई, ये कौन सी जगह है? ये कोई ऐसा जजीरा नज़र आ रहा है मुझे जहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है। इसको देखकर मुझे तो वो कहानी याद आ रही है जो मैंने एक मूवी में देखा था कि एक बंदा जो ट्रैवल कर रहा होता है तो जहाज़ उनका समंदर में डूब जाता है। तो ये एक बंदा बचता है जो एक जजीरे पे जाके वैसे ही पहुंच जाता है अपने मुकद्दर के साथ। तो वहाँ पे वो सिर्फ नारियल के पानी पे गुजारा करता है, दरख्तों से नारियल उतार के वो खाता रहता है, उसका पानी पे गुजारा करता है। और एक पत्थर जो है उसको एक शक्ल दे देता है एक आदमी की, तो उससे बातें करता रहता है कि ये मेरा दोस्त है। वहाँ से निकलने की काफ़ी कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं पाता, क्योंकि जो भी कश्ती वो बनाता है तो लहरें जो होती हैं पानी की वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होती हैं, जिसकी वजह से वो उसकी कश्ती बनाई हुई टूट जाती है। और जब भी वो बाहर निकलने की कोशिश करता है उसकी कश्ती टूट जाती है, लेकिन एक दफ़ा वो कामयाब हो ही जाता है और लहरों को चीरता हुआ वो अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस लौट जाता है। उसके घर वाले देखकर उसको बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे साथ ये वाक़या कैसे पेश आया, जिसको वो बयान करता है। हेलो भाई, ये कौन सी जगह है? ये कोई ऐसा जजीरा नज़र आ रहा है मुझे जहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है। इसको देखकर मुझे तो वो कहानी याद आ रही है जो मैंने एक मूवी में देखा था कि एक बंदा जो ट्रैवल कर रहा होता है तो जहाज़ उनका समंदर में डूब जाता है। तो ये एक बंदा बचता है जो एक जजीरे पे जाके वैसे ही पहुंच जाता है अपने मुकद्दर के साथ। तो वहाँ पे वो सिर्फ नारियल के पानी पे गुजारा करता है, दरख्तों से नारियल उतार के वो खाता रहता है, उसका पानी पे गुजारा करता है। और एक पत्थर जो है उसको एक शक्ल दे देता है एक आदमी की, तो उससे बातें करता रहता है कि ये मेरा दोस्त है। वहाँ से निकलने की काफ़ी कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं पाता, क्योंकि जो भी कश्ती वो बनाता है तो लहरें जो होती हैं पानी की वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होती हैं, जिसकी वजह से वो उसकी कश्ती बनाई हुई टूट जाती है। और जब भी वो बाहर निकलने की कोशिश करता है उसकी कश्ती टूट जाती है, लेकिन एक दफ़ा वो कामयाब हो ही जाता है और लहरों को चीरता हुआ वो अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस लौट जाता है। उसके घर वाले देखकर उसको बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे साथ ये वाक़या कैसे पेश आया, जिसको वो बयान करता है।
हेलो भाई, ये कौन सी जगह है? ये कोई ऐसा जजीरा नज़र आ रहा है मुझे जहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है। इसको देखकर मुझे तो वो कहानी याद आ रही है जो मैंने एक मूवी में देखा था कि एक बंदा जो ट्रैवल कर रहा होता है तो जहाज़ उनका समंदर में डूब जाता है। तो ये एक बंदा बचता है जो एक जजीरे पे जाके वैसे ही पहुंच जाता है अपने मुकद्दर के साथ। तो वहाँ पे वो सिर्फ नारियल के पानी पे गुजारा करता है, दरख्तों से नारियल उतार के वो खाता रहता है, उसका पानी पे गुजारा करता है। और एक पत्थर जो है उसको एक शक्ल दे देता है एक आदमी की, तो उससे बातें करता रहता है कि ये मेरा दोस्त है। वहाँ से निकलने की काफ़ी कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं पाता, क्योंकि जो भी कश्ती वो बनाता है तो लहरें जो होती हैं पानी की वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होती हैं, जिसकी वजह से वो उसकी कश्ती बनाई हुई टूट जाती है। और जब भी वो बाहर निकलने की कोशिश करता है उसकी कश्ती टूट जाती है, लेकिन एक दफ़ा वो कामयाब हो ही जाता है और लहरों को चीरता हुआ वो अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस लौट जाता है। उसके घर वाले देखकर उसको बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे साथ ये वाक़या कैसे पेश आया, जिसको वो बयान करता है। हेलो भाई, ये कौन सी जगह है? ये कोई ऐसा जजीरा नज़र आ रहा है मुझे जहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है। इसको देखकर मुझे तो वो कहानी याद आ रही है जो मैंने एक मूवी में देखा था कि एक बंदा जो ट्रैवल कर रहा होता है तो जहाज़ उनका समंदर में डूब जाता है। तो ये एक बंदा बचता है जो एक जजीरे पे जाके वैसे ही पहुंच जाता है अपने मुकद्दर के साथ। तो वहाँ पे वो सिर्फ नारियल के पानी पे गुजारा करता है, दरख्तों से नारियल उतार के वो खाता रहता है, उसका पानी पे गुजारा करता है। और एक पत्थर जो है उसको एक शक्ल दे देता है एक आदमी की, तो उससे बातें करता रहता है कि ये मेरा दोस्त है। वहाँ से निकलने की काफ़ी कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं पाता, क्योंकि जो भी कश्ती वो बनाता है तो लहरें जो होती हैं पानी की वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होती हैं, जिसकी वजह से वो उसकी कश्ती बनाई हुई टूट जाती है। और जब भी वो बाहर निकलने की कोशिश करता है उसकी कश्ती टूट जाती है, लेकिन एक दफ़ा वो कामयाब हो ही जाता है और लहरों को चीरता हुआ वो अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस लौट जाता है। उसके घर वाले देखकर उसको बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे साथ ये वाक़या कैसे पेश आया, जिसको वो बयान करता है। हेलो भाई, ये कौन सी जगह है? ये कोई ऐसा जजीरा नज़र आ रहा है मुझे जहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है। इसको देखकर मुझे तो वो कहानी याद आ रही है जो मैंने एक मूवी में देखा था कि एक बंदा जो ट्रैवल कर रहा होता है तो जहाज़ उनका समंदर में डूब जाता है। तो ये एक बंदा बचता है जो एक जजीरे पे जाके वैसे ही पहुंच जाता है अपने मुकद्दर के साथ। तो वहाँ पे वो सिर्फ नारियल के पानी पे गुजारा करता है, दरख्तों से नारियल उतार के वो खाता रहता है, उसका पानी पे गुजारा करता है। और एक पत्थर जो है उसको एक शक्ल दे देता है एक आदमी की, तो उससे बातें करता रहता है कि ये मेरा दोस्त है। वहाँ से निकलने की काफ़ी कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं पाता, क्योंकि जो भी कश्ती वो बनाता है तो लहरें जो होती हैं पानी की वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होती हैं, जिसकी वजह से वो उसकी कश्ती बनाई हुई टूट जाती है। और जब भी वो बाहर निकलने की कोशिश करता है उसकी कश्ती टूट जाती है, लेकिन एक दफ़ा वो कामयाब हो ही जाता है और लहरों को चीरता हुआ वो अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस लौट जाता है। उसके घर वाले देखकर उसको बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे साथ ये वाक़या कैसे पेश आया, जिसको वो बयान करता है।
हेलो भाई, ये कौन सी जगह है? ये कोई ऐसा जजीरा नज़र आ रहा है मुझे जहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है। इसको देखकर मुझे तो वो कहानी याद आ रही है जो मैंने एक मूवी में देखा था कि एक बंदा जो ट्रैवल कर रहा होता है तो जहाज़ उनका समंदर में डूब जाता है। तो ये एक बंदा बचता है जो एक जजीरे पे जाके वैसे ही पहुंच जाता है अपने मुकद्दर के साथ। तो वहाँ पे वो सिर्फ नारियल के पानी पे गुजारा करता है, दरख्तों से नारियल उतार के वो खाता रहता है, उसका पानी पे गुजारा करता है। और एक पत्थर जो है उसको एक शक्ल दे देता है एक आदमी की, तो उससे बातें करता रहता है कि ये मेरा दोस्त है। वहाँ से निकलने की काफ़ी कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं पाता, क्योंकि जो भी कश्ती वो बनाता है तो लहरें जो होती हैं पानी की वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होती हैं, जिसकी वजह से वो उसकी कश्ती बनाई हुई टूट जाती है। और जब भी वो बाहर निकलने की कोशिश करता है उसकी कश्ती टूट जाती है, लेकिन एक दफ़ा वो कामयाब हो ही जाता है और लहरों को चीरता हुआ वो अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस लौट जाता है। उसके घर वाले देखकर उसको बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे साथ ये वाक़या कैसे पेश आया, जिसको वो बयान करता है। हेलो भाई, ये कौन सी जगह है? ये कोई ऐसा जजीरा नज़र आ रहा है मुझे जहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है। इसको देखकर मुझे तो वो कहानी याद आ रही है जो मैंने एक मूवी में देखा था कि एक बंदा जो ट्रैवल कर रहा होता है तो जहाज़ उनका समंदर में डूब जाता है। तो ये एक बंदा बचता है जो एक जजीरे पे जाके वैसे ही पहुंच जाता है अपने मुकद्दर के साथ। तो वहाँ पे वो सिर्फ नारियल के पानी पे गुजारा करता है, दरख्तों से नारियल उतार के वो खाता रहता है, उसका पानी पे गुजारा करता है। और एक पत्थर जो है उसको एक शक्ल दे देता है एक आदमी की, तो उससे बातें करता रहता है कि ये मेरा दोस्त है। वहाँ से निकलने की काफ़ी कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं पाता, क्योंकि जो भी कश्ती वो बनाता है तो लहरें जो होती हैं पानी की वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होती हैं, जिसकी वजह से वो उसकी कश्ती बनाई हुई टूट जाती है। और जब भी वो बाहर निकलने की कोशिश करता है उसकी कश्ती टूट जाती है, लेकिन एक दफ़ा वो कामयाब हो ही जाता है और लहरों को चीरता हुआ वो अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस लौट जाता है। उसके घर वाले देखकर उसको बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे साथ ये वाक़या कैसे पेश आया, जिसको वो बयान करता है। हेलो भाई, ये कौन सी जगह है? ये कोई ऐसा जजीरा नज़र आ रहा है मुझे जहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है। इसको देखकर मुझे तो वो कहानी याद आ रही है जो मैंने एक मूवी में देखा था कि एक बंदा जो ट्रैवल कर रहा होता है तो जहाज़ उनका समंदर में डूब जाता है। तो ये एक बंदा बचता है जो एक जजीरे पे जाके वैसे ही पहुंच जाता है अपने मुकद्दर के साथ। तो वहाँ पे वो सिर्फ नारियल के पानी पे गुजारा करता है, दरख्तों से नारियल उतार के वो खाता रहता है, उसका पानी पे गुजारा करता है। और एक पत्थर जो है उसको एक शक्ल दे देता है एक आदमी की, तो उससे बातें करता रहता है कि ये मेरा दोस्त है। वहाँ से निकलने की काफ़ी कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं पाता, क्योंकि जो भी कश्ती वो बनाता है तो लहरें जो होती हैं पानी की वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होती हैं, जिसकी वजह से वो उसकी कश्ती बनाई हुई टूट जाती है। और जब भी वो बाहर निकलने की कोशिश करता है उसकी कश्ती टूट जाती है, लेकिन एक दफ़ा वो कामयाब हो ही जाता है और लहरों को चीरता हुआ वो अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस लौट जाता है। उसके घर वाले देखकर उसको बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे साथ ये वाक़या कैसे पेश आया, जिसको वो बयान करता है।
हेलो भाई, ये कौन सी जगह है? ये कोई ऐसा जजीरा नज़र आ रहा है मुझे जहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है। इसको देखकर मुझे तो वो कहानी याद आ रही है जो मैंने एक मूवी में देखा था कि एक बंदा जो ट्रैवल कर रहा होता है तो जहाज़ उनका समंदर में डूब जाता है। तो ये एक बंदा बचता है जो एक जजीरे पे जाके वैसे ही पहुंच जाता है अपने मुकद्दर के साथ। तो वहाँ पे वो सिर्फ नारियल के पानी पे गुजारा करता है, दरख्तों से नारियल उतार के वो खाता रहता है, उसका पानी पे गुजारा करता है। और एक पत्थर जो है उसको एक शक्ल दे देता है एक आदमी की, तो उससे बातें करता रहता है कि ये मेरा दोस्त है। वहाँ से निकलने की काफ़ी कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं पाता, क्योंकि जो भी कश्ती वो बनाता है तो लहरें जो होती हैं पानी की वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होती हैं, जिसकी वजह से वो उसकी कश्ती बनाई हुई टूट जाती है। और जब भी वो बाहर निकलने की कोशिश करता है उसकी कश्ती टूट जाती है, लेकिन एक दफ़ा वो कामयाब हो ही जाता है और लहरों को चीरता हुआ वो अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस लौट जाता है। उसके घर वाले देखकर उसको बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे साथ ये वाक़या कैसे पेश आया, जिसको वो बयान करता है। हेलो भाई, ये कौन सी जगह है? ये कोई ऐसा जजीरा नज़र आ रहा है मुझे जहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है। इसको देखकर मुझे तो वो कहानी याद आ रही है जो मैंने एक मूवी में देखा था कि एक बंदा जो ट्रैवल कर रहा होता है तो जहाज़ उनका समंदर में डूब जाता है। तो ये एक बंदा बचता है जो एक जजीरे पे जाके वैसे ही पहुंच जाता है अपने मुकद्दर के साथ। तो वहाँ पे वो सिर्फ नारियल के पानी पे गुजारा करता है, दरख्तों से नारियल उतार के वो खाता रहता है, उसका पानी पे गुजारा करता है। और एक पत्थर जो है उसको एक शक्ल दे देता है एक आदमी की, तो उससे बातें करता रहता है कि ये मेरा दोस्त है। वहाँ से निकलने की काफ़ी कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं पाता, क्योंकि जो भी कश्ती वो बनाता है तो लहरें जो होती हैं पानी की वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होती हैं, जिसकी वजह से वो उसकी कश्ती बनाई हुई टूट जाती है। और जब भी वो बाहर निकलने की कोशिश करता है उसकी कश्ती टूट जाती है, लेकिन एक दफ़ा वो कामयाब हो ही जाता है और लहरों को चीरता हुआ वो अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस लौट जाता है। उसके घर वाले देखकर उसको बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे साथ ये वाक़या कैसे पेश आया, जिसको वो बयान करता है। हेलो भाई, ये कौन सी जगह है? ये कोई ऐसा जजीरा नज़र आ रहा है मुझे जहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है। इसको देखकर मुझे तो वो कहानी याद आ रही है जो मैंने एक मूवी में देखा था कि एक बंदा जो ट्रैवल कर रहा होता है तो जहाज़ उनका समंदर में डूब जाता है। तो ये एक बंदा बचता है जो एक जजीरे पे जाके वैसे ही पहुंच जाता है अपने मुकद्दर के साथ। तो वहाँ पे वो सिर्फ नारियल के पानी पे गुजारा करता है, दरख्तों से नारियल उतार के वो खाता रहता है, उसका पानी पे गुजारा करता है। और एक पत्थर जो है उसको एक शक्ल दे देता है एक आदमी की, तो उससे बातें करता रहता है कि ये मेरा दोस्त है। वहाँ से निकलने की काफ़ी कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं पाता, क्योंकि जो भी कश्ती वो बनाता है तो लहरें जो होती हैं पानी की वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होती हैं, जिसकी वजह से वो उसकी कश्ती बनाई हुई टूट जाती है। और जब भी वो बाहर निकलने की कोशिश करता है उसकी कश्ती टूट जाती है, लेकिन एक दफ़ा वो कामयाब हो ही जाता है और लहरों को चीरता हुआ वो अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस लौट जाता है। उसके घर वाले देखकर उसको बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे साथ ये वाक़या कैसे पेश आया, जिसको वो बयान करता है।
हेलो भाई, ये कौन सी जगह है? ये कोई ऐसा जजीरा नज़र आ रहा है मुझे जहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है। इसको देखकर मुझे तो वो कहानी याद आ रही है जो मैंने एक मूवी में देखा था कि एक बंदा जो ट्रैवल कर रहा होता है तो जहाज़ उनका समंदर में डूब जाता है। तो ये एक बंदा बचता है जो एक जजीरे पे जाके वैसे ही पहुंच जाता है अपने मुकद्दर के साथ। तो वहाँ पे वो सिर्फ नारियल के पानी पे गुजारा करता है, दरख्तों से नारियल उतार के वो खाता रहता है, उसका पानी पे गुजारा करता है। और एक पत्थर जो है उसको एक शक्ल दे देता है एक आदमी की, तो उससे बातें करता रहता है कि ये मेरा दोस्त है। वहाँ से निकलने की काफ़ी कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं पाता, क्योंकि जो भी कश्ती वो बनाता है तो लहरें जो होती हैं पानी की वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होती हैं, जिसकी वजह से वो उसकी कश्ती बनाई हुई टूट जाती है। और जब भी वो बाहर निकलने की कोशिश करता है उसकी कश्ती टूट जाती है, लेकिन एक दफ़ा वो कामयाब हो ही जाता है और लहरों को चीरता हुआ वो अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस लौट जाता है। उसके घर वाले देखकर उसको बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे साथ ये वाक़या कैसे पेश आया, जिसको वो वाक़या बयान करता है। हेलो भाई, ये कौन सी जगह है? ये कोई ऐसा जजीरा नज़र आ रहा है मुझे जहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है। इसको देखकर मुझे तो वो कहानी याद आ रही है जो मैंने एक मूवी में देखा था कि एक बंदा जो ट्रैवल कर रहा होता है तो जहाज़ उनका समंदर में डूब जाता है। तो ये एक बंदा बचता है जो एक जजीरे पे जाके वैसे ही पहुंच जाता है अपने मुकद्दर के साथ। तो वहाँ पे वो सिर्फ नारियल के पानी पे गुजारा करता है, दरख्तों से नारियल उतार के वो खाता रहता है, उसका पानी पे गुजारा करता है। और एक पत्थर जो है उसको एक शक्ल दे देता है एक आदमी की, तो उससे बातें करता रहता है कि ये मेरा दोस्त है। वहाँ से निकलने की काफ़ी कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं पाता, क्योंकि जो भी कश्ती वो बनाता है तो लहरें जो होती हैं पानी की वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होती हैं, जिसकी वजह से वो उसकी कश्ती बनाई हुई टूट जाती है। और जब भी वो बाहर निकलने की कोशिश करता है उसकी कश्ती टूट जाती है, लेकिन एक दफ़ा वो कामयाब हो ही जाता है और लहरों को चीरता हुआ वो अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस लौट जाता है। उसके घर वाले देखकर उसको बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे साथ ये वाक़या कैसे पेश आया, जिसको वो वाक़या बयान करता है। हेलो भाई, ये कौन सी जगह है? ये कोई ऐसा जजीरा नज़र आ रहा है मुझे जहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है। इसको देखकर मुझे तो वो कहानी याद आ रही है जो मैंने एक मूवी में देखा था कि एक बंदा जो ट्रैवल कर रहा होता है तो जहाज़ उनका समंदर में डूब जाता है। तो ये एक बंदा बचता है जो एक जजीरे पे जाके वैसे ही पहुंच जाता है अपने मुकद्दर के साथ। तो वहाँ पे वो सिर्फ नारियल के पानी पे गुजारा करता है, दरख्तों से नारियल उतार के वो खाता रहता है, उसका पानी पे गुजारा करता है। और एक पत्थर जो है उसको एक शक्ल दे देता है एक आदमी की, तो उससे बातें करता रहता है कि ये मेरा दोस्त है। वहाँ से निकलने की काफ़ी कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं पाता, क्योंकि जो भी कश्ती वो बनाता है तो लहरें जो होती हैं पानी की वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होती हैं, जिसकी वजह से वो उसकी कश्ती बनाई हुई टूट जाती है। और जब भी वो बाहर निकलने की कोशिश करता है उसकी कश्ती टूट जाती है, लेकिन एक दफ़ा वो कामयाब हो ही जाता है और लहरों को चीरता हुआ वो अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस लौट जाता है। उसके घर वाले देखकर उसको बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे साथ ये वाक़या कैसे पेश आया, जिसको वो वाक़या बयान करता है।
हेलो भाई, ये कौन सी जगह है? ये कोई ऐसा जजीरा नज़र आ रहा है मुझे जहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है। इसको देखकर मुझे तो वो कहानी याद आ रही है जो मैंने एक मूवी में देखा था कि एक बंदा जो ट्रैवल कर रहा होता है तो जहाज़ उनका समंदर में डूब जाता है। तो ये एक बंदा बचता है जो एक जजीरे पे जाके वैसे ही पहुंच जाता है अपने मुकद्दर के साथ। तो वहाँ पे वो सिर्फ नारियल के पानी पे गुजारा करता है, दरख्तों से नारियल उतार के वो खाता रहता है, उसका पानी पे गुजारा करता है। और एक पत्थर जो है उसको एक शक्ल दे देता है एक आदमी की, तो उससे बातें करता रहता है कि ये मेरा दोस्त है। वहाँ से निकलने की काफ़ी कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं पाता, क्योंकि जो भी कश्ती वो बनाता है तो लहरें जो होती हैं पानी की वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होती हैं, जिसकी वजह से वो उसकी कश्ती बनाई हुई टूट जाती है। और जब भी वो बाहर निकलने की कोशिश करता है उसकी कश्ती टूट जाती है, लेकिन एक दफ़ा वो कामयाब हो ही जाता है और लहरों को चीरता हुआ वो अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस लौट जाता है। उसके घर वाले देखकर उसको बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे साथ ये वाक़या कैसे पेश आया, जिसको वो बयान करता है। हेलो भाई, ये कौन सी जगह है? ये कोई ऐसा जजीरा नज़र आ रहा है मुझे जहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है। इसको देखकर मुझे तो वो कहानी याद आ रही है जो मैंने एक मूवी में देखा था कि एक बंदा जो ट्रैवल कर रहा होता है तो जहाज़ उनका समंदर में डूब जाता है। तो ये एक बंदा बचता है जो एक जजीरे पे जाके वैसे ही पहुंच जाता है अपने मुकद्दर के साथ। तो वहाँ पे वो सिर्फ नारियल के पानी पे गुजारा करता है, दरख्तों से नारियल उतार के वो खाता रहता है, उसका पानी पे गुजारा करता है। और एक पत्थर जो है उसको एक शक्ल दे देता है एक आदमी की, तो उससे बातें करता रहता है कि ये मेरा दोस्त है। वहाँ से निकलने की काफ़ी कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं पाता, क्योंकि जो भी कश्ती वो बनाता है तो लहरें जो होती हैं पानी की वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होती हैं, जिसकी वजह से वो उसकी कश्ती बनाई हुई टूट जाती है। और जब भी वो बाहर निकलने की कोशिश करता है उसकी कश्ती टूट जाती है, लेकिन एक दफ़ा वो कामयाब हो ही जाता है और लहरों को चीरता हुआ वो अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस लौट जाता है। उसके घर वाले देखकर उसको बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे साथ ये वाक़या कैसे पेश आया, जिसको वो बयान करता है। हेलो भाई, ये कौन सी जगह है? ये कोई ऐसा जजीरा नज़र आ रहा है मुझे जहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है। इसको देखकर मुझे तो वो कहानी याद आ रही है जो मैंने एक मूवी में देखा था कि एक बंदा जो ट्रैवल कर रहा होता है तो जहाज़ उनका समंदर में डूब जाता है। तो ये एक बंदा बचता है जो एक जजीरे पे जाके वैसे ही पहुंच जाता है अपने मुकद्दर के साथ। तो वहाँ पे वो सिर्फ नारियल के पानी पे गुजारा करता है, दरख्तों से नारियल उतार के वो खाता रहता है, उसका पानी पे गुजारा करता है। और एक पत्थर जो है उसको एक शक्ल दे देता है एक आदमी की, तो उससे बातें करता रहता है कि ये मेरा दोस्त है। वहाँ से निकलने की काफ़ी कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं पाता, क्योंकि जो भी कश्ती वो बनाता है तो लहरें जो होती हैं पानी की वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होती हैं, जिसकी वजह से वो उसकी कश्ती बनाई हुई टूट जाती है। और जब भी वो बाहर निकलने की कोशिश करता है उसकी कश्ती टूट जाती है, लेकिन एक दफ़ा वो कामयाब हो ही जाता है और लहरों को चीरता हुआ वो अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस लौट जाता है। उसके घर वाले देखकर उसको बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे साथ ये वाक़या कैसे पेश आया, जिसको वो बयान करता है।
हेलो भाई, ये कौन सी जगह है? ये कोई ऐसा जजीरा नज़र आ रहा है मुझे जहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है। इसको देखकर मुझे तो वो कहानी याद आ रही है जो मैंने एक मूवी में देखा था कि एक बंदा जो ट्रैवल कर रहा होता है तो जहाज़ उनका समंदर में डूब जाता है। तो ये एक बंदा बचता है जो एक जजीरे पे जाके वैसे ही पहुंच जाता है अपने मुकद्दर के साथ। तो वहाँ पे वो सिर्फ नारियल के पानी पे गुजारा करता है, दरख्तों से नारियल उतार के वो खाता रहता है, उसका पानी पे गुजारा करता है। और एक पत्थर जो है उसको एक शक्ल दे देता है एक आदमी की, तो उससे बातें करता रहता है कि ये मेरा दोस्त है। वहाँ से निकलने की काफ़ी कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं पाता, क्योंकि जो भी कश्ती वो बनाता है तो लहरें जो होती हैं पानी की वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होती हैं, जिसकी वजह से वो उसकी कश्ती बनाई हुई टूट जाती है। और जब भी वो बाहर निकलने की कोशिश करता है उसकी कश्ती टूट जाती है, लेकिन एक दफ़ा वो कामयाब हो ही जाता है और लहरों को चीरता हुआ वो अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस लौट जाता है। उसके घर वाले देखकर उसको बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे साथ ये वाक़या कैसे पेश आया, जिसको वो वाक़या बयान करता है। हेलो भाई, ये कौन सी जगह है? ये कोई ऐसा जजीरा नज़र आ रहा है मुझे जहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है। इसको देखकर मुझे तो वो कहानी याद आ रही है जो मैंने एक मूवी में देखा था कि एक बंदा जो ट्रैवल कर रहा होता है तो जहाज़ उनका समंदर में डूब जाता है। तो ये एक बंदा बचता है जो एक जजीरे पे जाके वैसे ही पहुंच जाता है अपने मुकद्दर के साथ। तो वहाँ पे वो सिर्फ नारियल के पानी पे गुजारा करता है, दरख्तों से नारियल उतार के वो खाता रहता है, उसका पानी पे गुजारा करता है। और एक पत्थर जो है उसको एक शक्ल दे देता है एक आदमी की, तो उससे बातें करता रहता है कि ये मेरा दोस्त है। वहाँ से निकलने की काफ़ी कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं पाता, क्योंकि जो भी कश्ती वो बनाता है तो लहरें जो होती हैं पानी की वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होती हैं, जिसकी वजह से वो उसकी कश्ती बनाई हुई टूट जाती है। और जब भी वो बाहर निकलने की कोशिश करता है उसकी कश्ती टूट जाती है, लेकिन एक दफ़ा वो कामयाब हो ही जाता है और लहरों को चीरता हुआ वो अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस लौट जाता है। उसके घर वाले देखकर उसको बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे साथ ये वाक़या कैसे पेश आया, जिसको वो वाक़या बयान करता है। हेलो भाई, ये कौन सी जगह है? ये कोई ऐसा जजीरा नज़र आ रहा है मुझे जहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है। इसको देखकर मुझे तो वो कहानी याद आ रही है जो मैंने एक मूवी में देखा था कि एक बंदा जो ट्रैवल कर रहा होता है तो जहाज़ उनका समंदर में डूब जाता है। तो ये एक बंदा बचता है जो एक जजीरे पे जाके वैसे ही पहुंच जाता है अपने मुकद्दर के साथ। तो वहाँ पे वो सिर्फ नारियल के पानी पे गुजारा करता है, दरख्तों से नारियल उतार के वो खाता रहता है, उसका पानी पे गुजारा करता है। और एक पत्थर जो है उसको एक शक्ल दे देता है एक आदमी की, तो उससे बातें करता रहता है कि ये मेरा दोस्त है। वहाँ से निकलने की काफ़ी कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं पाता, क्योंकि जो भी कश्ती वो बनाता है तो लहरें जो होती हैं पानी की वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होती हैं, जिसकी वजह से वो उसकी कश्ती बनाई हुई टूट जाती है। और जब भी वो बाहर निकलने की कोशिश करता है उसकी कश्ती टूट जाती है, लेकिन एक दफ़ा वो कामयाब हो ही जाता है और लहरों को चीरता हुआ वो अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस लौट जाता है। उसके घर वाले देखकर उसको बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे साथ ये वाक़या कैसे पेश आया, जिसको वो वाक़या बयान करता है।
हेलो भाई, ये कौन सी जगह है? ये कोई ऐसा जजीरा नज़र आ रहा है मुझे जहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है। इसको देखकर मुझे तो वो कहानी याद आ रही है जो मैंने एक मूवी में देखा था कि एक बंदा जो ट्रैवल कर रहा होता है तो जहाज़ उनका समंदर में डूब जाता है। तो ये एक बंदा बचता है जो एक जजीरे पे जाके वैसे ही पहुंच जाता है अपने मुकद्दर के साथ। तो वहाँ पे वो सिर्फ नारियल के पानी पे गुजारा करता है, दरख्तों से नारियल उतार के वो खाता रहता है, उसका पानी पे गुजारा करता है। और एक पत्थर जो है उसको एक शक्ल दे देता है एक आदमी की, तो उससे बातें करता रहता है कि ये मेरा दोस्त है। वहाँ से निकलने की काफ़ी कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं पाता, क्योंकि जो भी कश्ती वो बनाता है तो लहरें जो होती हैं पानी की वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होती हैं, जिसकी वजह से वो उसकी कश्ती बनाई हुई टूट जाती है। और जब भी वो बाहर निकलने की कोशिश करता है उसकी कश्ती टूट जाती है, लेकिन एक दफ़ा वो कामयाब हो ही जाता है और लहरों को चीरता हुआ वो अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस लौट जाता है। उसके घर वाले देखकर उसको बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे साथ ये वाक़या कैसे पेश आया, जिसको वो बयान करता है। हेलो भाई, ये कौन सी जगह है? ये कोई ऐसा जजीरा नज़र आ रहा है मुझे जहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है। इसको देखकर मुझे तो वो कहानी याद आ रही है जो मैंने एक मूवी में देखा था कि एक बंदा जो ट्रैवल कर रहा होता है तो जहाज़ उनका समंदर में डूब जाता है। तो ये एक बंदा बचता है जो एक जजीरे पे जाके वैसे ही पहुंच जाता है अपने मुकद्दर के साथ। तो वहाँ पे वो सिर्फ नारियल के पानी पे गुजारा करता है, दरख्तों से नारियल उतार के वो खाता रहता है, उसका पानी पे गुजारा करता है। और एक पत्थर जो है उसको एक शक्ल दे देता है एक आदमी की, तो उससे बातें करता रहता है कि ये मेरा दोस्त है। वहाँ से निकलने की काफ़ी कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं पाता, क्योंकि जो भी कश्ती वो बनाता है तो लहरें जो होती हैं पानी की वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होती हैं, जिसकी वजह से वो उसकी कश्ती बनाई हुई टूट जाती है। और जब भी वो बाहर निकलने की कोशिश करता है उसकी कश्ती टूट जाती है, लेकिन एक दफ़ा वो कामयाब हो ही जाता है और लहरों को चीरता हुआ वो अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस लौट जाता है। उसके घर वाले देखकर उसको बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे साथ ये वाक़या कैसे पेश आया, जिसको वो बयान करता है। हेलो भाई, ये कौन सी जगह है? ये कोई ऐसा जजीरा नज़र आ रहा है मुझे जहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है। इसको देखकर मुझे तो वो कहानी याद आ रही है जो मैंने एक मूवी में देखा था कि एक बंदा जो ट्रैवल कर रहा होता है तो जहाज़ उनका समंदर में डूब जाता है। तो ये एक बंदा बचता है जो एक जजीरे पे जाके वैसे ही पहुंच जाता है अपने मुकद्दर के साथ। तो वहाँ पे वो सिर्फ नारियल के पानी पे गुजारा करता है, दरख्तों से नारियल उतार के वो खाता रहता है, उसका पानी पे गुजारा करता है। और एक पत्थर जो है उसको एक शक्ल दे देता है एक आदमी की, तो उससे बातें करता रहता है कि ये मेरा दोस्त है। वहाँ से निकलने की काफ़ी कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं पाता, क्योंकि जो भी कश्ती वो बनाता है तो लहरें जो होती हैं पानी की वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होती हैं, जिसकी वजह से वो उसकी कश्ती बनाई हुई टूट जाती है। और जब भी वो बाहर निकलने की कोशिश करता है उसकी कश्ती टूट जाती है, लेकिन एक दफ़ा वो कामयाब हो ही जाता है और लहरों को चीरता हुआ वो अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस लौट जाता है। उसके घर वाले देखकर उसको बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे साथ ये वाक़या कैसे पेश आया, जिसको वो बयान करता है।
हेलो भाई, ये कौन सी जगह है? ये कोई ऐसा जजीरा नज़र आ रहा है मुझे जहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है। इसको देखकर मुझे तो वो कहानी याद आ रही है जो मैंने एक मूवी में देखा था कि एक बंदा जो ट्रैवल कर रहा होता है तो जहाज़ उनका समंदर में डूब जाता है, तो ये एक बंदा बचता है जो एक जजीरे पे जाके वैसे ही पहुंच जाता है अपने मुकद्दर के साथ। तो वहाँ पे वो सिर्फ नारियल के पानी पे गुजारा करता है, दरख्तों से नारियल उतार के वो खाता रहता है, उसका पानी पे गुजारा करता है। और एक पत्थर जो है उसको एक शक्ल दे देता है एक आदमी की, तो उससे बातें करता रहता है कि ये मेरा दोस्त है। वहाँ से निकलने की काफ़ी कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं पाता, क्योंकि जो भी कश्ती वो बनाता है तो लहरें जो होती हैं पानी की वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होती हैं, जिसकी वजह से वो उसकी कश्ती बनाई हुई टूट जाती है। और जब भी वो बाहर निकलने की कोशिश करता है उसकी कश्ती टूट जाती है, लेकिन एक दफ़ा वो कामयाब हो ही जाता है और लहरों को चीरता हुआ वो अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस लौट जाता है। उसके घर वाले देखकर उसको बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे साथ ये वाक़या कैसे पेश आया, जिसको वो बयान करता है। हेलो भाई, ये कौन सी जगह है? ये कोई ऐसा जजीरा नज़र आ रहा है मुझे जहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है। इसको देखकर मुझे तो वो कहानी याद आ रही है जो मैंने एक मूवी में देखा था कि एक बंदा जो ट्रैवल कर रहा होता है तो जहाज़ उनका समंदर में डूब जाता है, तो ये एक बंदा बचता है जो एक जजीरे पे जाके